Hello everyone, today we are going to study fundamental units of life, which is the first chapter of class 9th biology. We have studied in our previous lecture about the classification of cells. The cell has mainly two parts. The first part is cell membrane and the second part is the protoplasm. The cell membrane is of two types, the plasma membrane and the cell wall. Note this that cell wall is only present in plant. Whereas protoplasm is of two types. First is cytoplasm and second is nucleus. We have studied about plasma membrane, cell wall, nucleus. Now we are going to study the cytoplasm. Okay. Cytoplasm. We have studied in the introduction of cytoplasm that it is a jelly-like substance present between the nucleus and the plasma membrane. Okay. Let this be the cell, this is the plasma membrane and this be the nucleus. Okay, this part is known as cytoplasm. It contains many cell organelles. There are about 6 cell organelles in generally. Okay, and in animal cell there are only 5 cell organelles. Okay, endoplasmic reticulum is one of those cell organelles. Now we will study all these cell organelles in detail. Let's study this. Cell organelles. We have all have studied that cell organelles comprises to form a cell. Okay, group of cell organelles forms cell. Cell जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं. And we have also studied the discoverers and discoveries. Yes, like Robert Hooke discovered cell, Anthony von Leeuwenhoek discovered living cell, Robert Brown discovered nucleus, and Purkinje discovered protoplasm. Okay, and please remember those years, and you can also remember all of these by mnemonics that I told you in the first lecture. Now coming to the endoplasmic reticulum, it is membrane bound network system. Okay, it is membrane bound network system. Okay, it is membrane bound network system of tubes. ये कैसे क्या बना होता है? ट्यूब्स का बना होता है एंड सीड्स. ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नेटवर्क सिस्टम होता है. मतलब क्या कह सकते हैं हम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है. जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है जो कि उसका साइज को मेंटेन करके रखता है. हाँ, सेल में कोई भी चीज को आने नहीं देता है. सेम एज दैट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज इट्स ओन मेम्ब्रेन. लाइक nucleus have its own membrane that is known as nuclear envelope or nuclear membrane. Okay, so endoplasmic reticulum has membrane bound network system of tubes and sheets. अब हम देख सकते हैं कि ये जो membrane bound network system है ये tubes और sheets का बना है. Okay, तो we can think, imagine, okay, like in our house, okay, the drainage system we see, okay, are all made up of the tubes. Okay, like this is the drainage system of our house. Okay, this is the drainage system of our house. It is made up of tubes. And what is its function? Its function is to carry water or any waste or any water, pure substance. Okay, its function is to transport. Same as that. This endoplasmic reticulum, the tubes and sheets of endoplasmic reticulum, okay, functions as ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ये जो ट्यूब्स और सीट्स है जिससे ये बना होता है इट इज चैनल ऑफ, ओके, सर्व्स एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट करता है. जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो घर में होता है ड्रेनेज सिस्टम होता है जो कि ट्यूब से बना होता है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल होता है जिससे उसी चैनल होकर वाटर जाता है या कोई भी चीज जाता है. ठीक है, सेम एज दैट endoplasmic reticulum serves as a channel for transport in the cell, okay, in the living cell. Okay, now moving further, ये जो endoplasmic reticulum है, okay, ये cytoplasmic framework प्रोवाइड करता है, function as cytoplasmic framework
साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू द सेल, किसे प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क? सेल को। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, साइटोप्लाज्मिक किस चीज बना है? साइटोप्लाज्म और फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्रेमवर्क बनाता है, फ्रेम बनाता है KSDBG का। ऐसे हम घर में ड्रेनेज बनाते हैं, ठीक है, उसमें एक पहले फ्रेम बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कैसे किधर से पानी को ले जाना है, सेम एज दैट। ओके, फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग a surface for biochemical activities, and note this, you will get the PDF of this lecture in the description box, and also the notes which I am telling you, the information which I am telling you in the lecture is many more things. It contains many more information, many more knowledge than the notes. So also make a notes from the lecture. Okay, तो हमने क्या पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? ये ट्यूब्स और शीट्स का बना होता है, और अगर ये ट्यूब्स और शीट्स का बना होता है इसमें ये तो चैनल ट्रांसपोर्ट ही करेगा, क्योंकि कोई भी ट्यूब्स हम घर में लगाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, ठीक है। तो सो इट सर्व्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्म में ये फ्रेमवर्क बनाता है, फ्रेम बनाता है। ओके, फंक्शंस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू द सेल, किसे प्रोवाइड करता है? सेल को। प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अब जो सेल में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम होता है, इससे क्या होता है? बायोकेमिकल एक्टिविटीज होता है। अब बायोकेमिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? ठीक है, बायो मतलब कि कोई भी बायोलॉजिकल चीज में, वी आर ऑल्सो बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ओके, तो हमारे अंदर या कोई जानवर के अंदर, कोई पौधा के अंदर केमिकल एक्टिविटीज होता है। मतलब केमिकल एक्टिविटीज क्या समझ सकते हैं? कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है जिससे केमिकल चेंज उत्पन्न हो, जैसे कि डाइजेशन है, इट इज ऑल्सो केमिकल एक्टिविटीज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओके, व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। Okay, now coming to the endoplasmic reticulum types. There are two types or two parts of endoplasmic reticulum. The first is a smooth endoplasmic reticulum and the second is rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is of two types. Okay, first is a smooth endoplasmic reticulum and the second is rough endoplasmic reticulum. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इससे हम क्या समझते हैं? ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि स्मूथ होगा ये, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि रफ होगा। अब ये रफ क्यों होगा? डिफरेंस होना चाहिए नहीं कुछ, क्या वैसे ही कुछ रफ हो जाता है? नहीं, उसमें कुछ फ्रिक्शन करने के लिए कुछ होता है, ठीक है। तो ये रफ होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ, ओके, इट्स सरफेस इज रफ बिकॉज ऑफ लाइजोजोम्स found in it, okay। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है क्योंकि उसके जो सरफेस होता है, ठीक है, उस पर लाइजोसोम सटा होता है। लेट दिस इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस, ओके, देन इट हैज द लाइजोसोम्स ऑन इट, स्टिक्ड ऑन इट, ओके, लाइजोसोम्स इस पर सटा होता है। यही कारण से ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है। कोई भी चीज इसमें कुछ स्टार्ट देंगे, ठीक है, ये जो बोर्ड है इसमें कुछ स्टार्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली ये रफ हो जाएगा, ओके। 10 ये जो लाइजोसोम्स होता है, ये लाइजोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? लाइजोसोम्स जो होता है ये प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है, ओके। लाइजोसोम्स मैन्युफैक्चर प्रोटीन। व्हाट वी स्टडीड? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ endoplasmic reticulum. The first is smooth endoplasmic reticulum, the second is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is rough because of lysosomes attached to it, okay। तो ये lysosomes इससे अटैच है, इसका कुछ फंक्शन होना चाहिए। किसी को भी हम अपने से अटैच क्यों होने देंगे? उससे कुछ हमको फायदा होना चाहिए ना। तो सेल ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है सेल में, ठीक है। lysosomes प्रोवाइड प्रोटीन। इट इज वेरी tricky question from exam point of view, okay। Now coming to the smooth endoplasmic reticulum, what is a smooth endoplasmic reticulum? Okay, a smooth endoplasmic reticulum manufactures fat and lipid. A smooth endoplasmic reticulum
मैन्युफैक्चर प्रोटीन फैट एंड लिपिड which act as a bodybuilder, okay, acts as bodybuilder, okay. स्मूथ इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड होता है। फैट सब जानते हैं, ठीक है, जो चर्बी होती है, तो फैट और लिपिड का इसमें बनता है। लिपिड के बारे में आप बाद में एकदम पूरा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके। इट एक्ट्स एज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर फैट एंड लिपिड, दिस फैट एंड लिपिड एक्ट्स एज बॉडी बिल्डर, ठीक है। और ये बॉडी बिल्डर के जैसे तो अपने आप टेक्निक करने लगेगा, इसमें कुछ प्रोसेस होना चाहिए, ओके। कोई भी चीज़ हम जैसे खाना बनाने के लिए कुछ लाते हैं, चावल लाते हैं, ऑटोमेटिक तो वो चावल मतलब कि पक नहीं जाता है, उसमें कुछ रिएक्शन करवाते हैं, कंबसन करते हैं उसका। तो सेम एज दैट it act as a bodybuilder by the process of membrane biogenesis. So what is membrane biogenesis? Okay, what is membrane biogenesis? Answer: membrane biogenesis is the process by which the fat and lipid manufactured by smooth endoplasmic reticulum, okay, acts as a bodybuilder, okay. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ये जो फैट एंड लिपिड जो है, जो कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को द्वारा बना हुआ है, वो बॉडी बिल्डर की तरह एक्ट करने लगता है, बॉडी को बिल्ड करता है, मसल्स को बिल्ड करता है, ओके। इट ऑल्सो एक्ट्स as enzyme and hormone. Enzymes and you will study about enzymes and hormones in class 10 and और आप लोग क्लास 8 में भी इसके बारे में कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। enzymes is the material which जो enzymes हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है मटेरियल्स का, ओके। हार्मोन्स जो कि हमारे बॉडी में कुछ कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, ओके। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ड्यू टू द फैट एंड लिपिड, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट फीचर ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डिटॉक्सिफाई, ये जो है detoxify poisons and drugs, many poisons and drugs from the body. ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बॉडी से बहुत सारे पॉइजन और ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई, टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस, ओके। तो पॉइजनस को मतलब कि जहरहीन बना देता है। इट मेक्स पॉइजनस नॉन पॉइजनस मटेरियल टू नॉन पॉइजनस मटेरियल, ओके, इट्स कन्वर्ट्स, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is in your syllabus, okay. If you have doubt regarding any of these topics, you can ask us in comment box or call us, okay. You can directly call us for any queries. Now coming to the next topic, the first was endoplasmic reticulum. Now we are studying Golgi apparatus. Golgi apparatus. Golgi apparatus. What is Golgi apparatus? It is also a cell organelle present in the cytoplasm. Okay. It was discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi was a biologist who discovered the Golgi apparatus. Okay, Golgi apparatus ये जो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स को बनाता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। गोल्गी apparatus जो है लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब समझते हैं कि गोल्गी apparatus आखिर होता कैसा है, ठीक है।
कॉन्जिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये जो गोल्गी एपेरेटस है, कॉन्जिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अब इसे क्या समझते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब कोई भी वेरी लेस डायमीटर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बहुत कम डायमीटर का पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वैसे वेसिकल्स कहते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है गोल्गी एपेरेटस, एक कॉन्जिस्ट ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम रखता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है। वेसिकल्स होता है जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का एक सिस्टम होता है गोल्गी एपेरेटस, और इसका फंक्शन ही पढ़ेंगे हम। इसका फंक्शन होता है मॉडिफाइंग एनीथिंग, ओके, और पैकेज ऑफ एनीथिंग सब्सटेंस इन द सेल, ओके। ये जो है गोल्गी एपेरेटस कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये इस चीज़ समझते हैं, जैसे कि हमें कोई चीज़ को कुरियर करना होता है, ओके, फ्रॉम थिंक दिल्ली टू मुंबई, ओके, दिल्ली से मुंबई कोई चीज़ को हमको कुरियर करना है बाय द पोस्ट, ओके, देन फर्स्ट विल पैक इट, ओके, देन वी विल पास इट थ्रू द पोस्ट। द पोस्ट इज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी चीज़ को। सेम एज दैट, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? चैनल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और गोल्गी एपेरेटस जो है पैकिंग सब्सटेंस है, किसी भी चीज़ को पैक करता है, तो दोनों तो जुड़ा होगा ही ना, ठीक है। किसी मतलब, अब फिर से एक बार देखते हैं हम, ठीक है। पहले दिल्ली में होगा क्या? दिल्ली से अगर कुछ मुंबई भेजना है मुझे, दिल्ली से कोई चीज़ को, यहाँ पहले पैक करेंगे हम, फिर पोस्ट करेंगे हम, ओके। तो पहले पैक करेंगे, तो गोल्गी एपेरेटस पैकिंग का काम करता है सेल में, और पोस्ट का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वी कैन से दैट इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपेरेटस से कनेक्टेड होता है, ओके। क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ओके। बायोलॉजी विल बी द a little play, okay। बायोलॉजी एक खेल है, अगर आप इस चीज़ का मतलब कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो, ओके। और इसका फंक्शन पढ़ते हैं हम। जैसे आपको मैंने बताया, पैकेज होता है इसका फंक्शन, स्टोरेज होता है। जब तक ये पोस्ट हम नहीं भेज रहे हैं तब तक इसको स्टोरेज करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ओके। पैकेज, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन होता है इसका फंक्शन। मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करता है, मतलब समझते हैं मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफाई मतलब किसी को एक नया स्वरूप देना, ओके, नई आकृति देना। जैसे हम कोई भी सब्सटेंस है, एक कोई भी लेट से दिस इज अ टीवी, इसे हमको मुंबई से दिल्ली भेजना है, इसे मॉडिफाई करेंगे, जब एक बड़ा सा कार्टून में पैक करेंगे हम। ये पैक कौन करेगा? गोल्गी एपेरेटस पैक करेगा, स्टोर करके रखेगा जब तक पोस्ट नहीं होगा, और ये बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, ओके। नाउ द second last features of this Golgi apparatus is transport materials synthesized in ER, ओके। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। और यहाँ जो मोस्ट important feature of Golgi apparatus is it convert simple sugar into complex sugar। हम लोग जो खाते हैं, ओके, वो शुगर बहुत सिंपल होता है, बट कार्बोहाइड्रेट जो मैन्युफैक्चर होता है शुगर से हमारे बॉडी में, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्या उस शुगर को हम मतलब कि अपने डेली यूज में ला सकते हैं? नो एट ऑल, ओके। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्गी एपेरेटस। लेट्स टेक अ ब्रीफ sketch of this Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने Golgi apparatus का डिस्कवरी किया, और ये Golgi apparatus जो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स को बनाता है, ओके। Golgi apparatus manufactures lysosomes, and the third feature of this is consists system of membrane bound vesicles, ओके। Golgi apparatus में membrane bound vesicles होता है, और एक Golgi apparatus
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। क्यों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है तो, और ये गोल्गी पर स्टोर करके रखता है, पैकेज करता है। तो पैकेज वाला आदमी और ट्रांसपोर्ट वाला आदमी दोनों कभी ना कभी तो मिलता होगा ना। सो इट इज कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस इज पैकेज स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन, एज आई टोल्ड यू। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट feature is it converts simple sugar into complex sugar. Okay, now moving ahead, now our next is next cell organelles now we are going to study. Okay, our next cell organelles is lysosomes. It is also very we can say that it is very mind-blowing types of cell organelles. It has a very strong power, strongest power in the cell. It can destroy the whole cell. Okay, ये जो लाइसोम्स है मोस्ट पावरफुल है, ये पूरे सेल को तबाह कर सकता है, इतना पावर रखता है वो। ओके, लाइसोसोम्स कैसे करता है तबाह, हम देखते हैं इसे। लाइसोसोम्स ओके हैज मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स, has membrane bond sacs. sacs मतलब क्या समझ सकते हैं हम? कोई बैलून हुआ सैक्स है, वो भी कोई बोरा हुआ वो भी सैक है। तो इसमें इसके पास लाइसोसोम्स जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक होता है, ये एक बैलून की तरह होता है ये, ठीक है। और इसमें होता क्या है, फिल्ड विद, ये जो सैक्स है इसमें कुछ तो होना चाहिए ना, ये बैलून है इसमें कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। तो फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाला, पचाने वाला एंजाइम रखता है ये एंजाइम। ओके, अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्यों रखता है भाई? हर चीज का तो कुछ कारण होता है ना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज अ व्हाई, एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाई, ओके, यू विल अंडरस्टैंड द फुल टॉपिक। द फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता क्यों है? ओके, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता क्यों है? ये होता है कि अगर कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर घुसने देता है, लेकिन मिस्टेक इज डन बाय ऑल। ओके, मिस्टेक सभी से होता है। तो अगर कुछ मिस्टेक के कारण कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल, एक्सटर्नल नॉन नीडेड, जिसका आवश्यकता नहीं है, मटेरियल इंटर करता है, अगर सेल के अंदर अनावश्यक चीज अगर घुस जाएगा तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये उसे पूरा अपने अंदर समेट लेगा, पचा लेगा, पूरा बर्बाद कर देगा पूरा। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन लाइसोसोम्स। ओके, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? मैन्युफैक्चर्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों बनता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है? Because lysosomes also lives in rough endoplasmic reticulum, as you have studied in the previous minute. Okay, on the previous screen. Okay, तो ये एक्सटर्नल नॉन नीडेड सब्सटेंस जब अंदर आता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसे पूरा अपने अंदर संभाल लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। उसे पूरा कहते हैं ना, इसे डिकम्पोज कर देगा पूरा, बर्बाद कर देगा पूरा। नाउ इट हैज मेनी नेम्स, इट इज नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इट इज ऑल्सो नॉन एज सेल हाउसकीपर। सेल हाउसकीपर, सेल हाउसकीपर, इट इज ऑल्सो नॉन एज a scavenger of cell. A scavenger of the cell. There is one more name of the lysosomes. Okay, the next name is demolition squad. Demolition squad of cell. भाई चारों नाम इसे क्यों दिए हम? सुसाइडल बैग, क्योंकि ये वाई क्यों उसे ऐसे नाम दिए हम? ये खुद सुसाइड कैसे कर लेगा? अगर इसके सेल मैन्युफैक्चरिंग में सेल के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है
ठीक है, उसमें अगर कोई भी बाल में कुछ दुर्घटना घटेगी, कुछ भी फंक्शन, उसका जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में अगर कोई भी कहते हैं ना कि अनियमितता होगी, ठीक है, जैसे कि जो रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा कभी, उसका रूटीन जो है, रूटीन अगर खराब हो जाएगा तो ये समझेगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है और इसका जो बैग है, ये जो सैक है, ये सैक फट जाएगा। ओके, अगर कोई भी अनियमितता होगी, अगर कोई भी रेगुलरिटी खत्म होगा, रूटीन खराब होगा इसके अंदर, कुछ भी लाइजम्स के अंदर, ये सैक फट जाएगा और ये सैक फटेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलेगा पूरा सेल में, और डाइजेस्टिव एंजाइम पूरा सेल में निकलेगा तो ये अपने पूरा सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इट इज नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, एस्केवेंजर ऑफ द सेल। एस्केवेंजर मतलब किलर, ओके, मतलब हत्या कर लेना, किसी को अपना आहार बना लेना, ओके, एस्केवेंजर इसे कहते हैं। डिमोलिशन स्क्वाड, स्क्वाड मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं एग्जाम टाइम में टीचर लोग कहते होंगे फ्लाइंग स्क्वाड आ रहे हैं, ठीक है, वैसे डिमोलिशन स्क्वाड होता है ये। डिमोलाइज मतलब बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ओके। एंड सेल हाउसकीपर इसे क्यों कहा जाता है, इसका मतलब अलग है, ये क्यों कहा जाता है सेल हाउसकीपर? सेल हाउसकीपर कहा जाता है इस कारण से, यहाँ वाई का आंसर क्या था कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट अगर आ जाता है सेल में तो सेल उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अपना रूटीन अगर खराब हो गया पूरा अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स, ओके। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द माइटोकॉन्ड्रिया, okay, and we will study about mitochondria, plastid and vacuole in our next lecture. Keep watching the lecture and make notes. If you have any doubt regarding this, then you can contact to your teachers or write your queries in the comment box. We will definitely try to answer all your queries. Okay, thanks, have a nice day.